Hello everyone, welcome to Chapter Hunt. This is Radhika. Today we will study question and answers of Chapter 3, How the State Government Works from Class 7 NCERT book Social and Political Life. If it is your first time, please hit the subscribe button and also the notification bell. So let's get started. Now, this is the chapter How the State Government Works. In class 6, we studied that government works at 3 levels, local, state and national level, and we studied how the local government worked. Now, in this class, in class 7, you will be studying how the state government works. So, let's see इस chapter में से कौन-कौन से questions आपके examination point of view से आ सकते हैं. Question number 1. What do you understand by the word government? ये आपने करा हुआ है. In common usage, the word government refers to the government departments and various ministers who head them. So क्या मतलब हुआ? Government क्या होता है? Governing body that makes decisions and it gets things done for the welfare of the citizens. Now, what are the 3 levels of government in India? The 3 levels of government in India are the national level, state level and the local level. We know that national level पे क्या है? Union government, which is headed by the Prime Minister. State level पे क्या है? The state level पे आपका क्या है? It is the government of a particular state and it is headed by the Chief Minister. And local level पे क्या होता है? It consists of the panchayats in the rural areas and the municipalities in the urban areas. Now coming to our next question, define constituency. Constituency का मतलब क्या होता है? A particular area from which all the voters living there choose their representatives. That is called a constituency. मतलब आपका कोई भी अगर यहाँ पे elections होने हैं, that elections are held how? By dividing the whole country or a state into different representative areas. और हर उस area को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी. मतलब क्या हो गया? ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो गया? एक फिक्स्ड एरिया हो गया विच हैज़ व्हाट? इट हैज़ अ बॉडी ऑफ वोटर्स विथ स्ट्रॉन्ग वोटिंग राइट्स. Who is a MLA? Now, MLA is a member of Legislative Assembly. ये आपका फुल फॉर्म में भी आ सकता है, वन उसमें भी वन वर्ड में भी आ सकता है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में. MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको ये याद रखना है. MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. दे आर इलेक्टेड थ्रू अ जनरल इलेक्शन एंड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. They form the government or opposition. Thus, they represent the people. अब MLA क्या होता है? जैसे अगर आपका किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, उस स्टेट को डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में. अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से में इलेक्शंस होंगे तो डिफरेंट पार्टीज़ का, कोई कांग्रेस पार्टी का, कोई आप पार्टी का, कोई बीजेपी पार्टी का वहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा होता है कैंडिडेट. आपने वोट दिया, वोटर राइट अपना यूज़ किया एंड पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा. अब जो रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता उसको हम बोलते हैं MLA. तो उसका क्या काम हो गया? दे फॉर्म द गवर्नमेंट या ऑपोजिशन. वो कैसे होगा? आई विल एक्सप्लेन यू आगे. तो आप ये समझो कि जहाँ पे भी अगर स्टेट में इलेक्शन होना है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हमने वोट करके उसको जिताया, वो जो जीत कर आया, उसको हम बोलते हैं MLA. How is MLA elected? Every state has a legislative assembly. Each state is divided into constituencies. From each constituency, one representative is elected by the people who then becomes a MLA. Candidate belongs to different political parties or may be independent. तो ठीक है, ये समझ में आया आपको कि हर स्टेट को डिवाइड करा डिफरेंट एरियाज़ में जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एक इलेक्शन होना है तो डिफरेंट पार्टीज़ के वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्टी का हर जगह से जीत जाएगा. अगर आपकी जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश में अगर उसको 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड करा गया है तो उसमें से आप देखोगे, जैसे आपके बुक में एग्जांपल है 2017 का, उसमें इलेक्शंस में उसमें बीजेपी हैज़ वन 44. तो जो 44 जगह से 44 एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव जीते हैं वो वहाँ के MLA हैं. अब इसी तरह से जो INC है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है,
उसमें 2017 के जो इलेक्शंस हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उसमें से 21 कैंडिडेट्स जीते। दैट मीन्स किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का मेंबर जीता, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस का जीता, किसी में से इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी से भी नहीं होते वो खड़े हो गए। तो वैसे करके एमएलए जो हैं वो डिफरेंट पार्टीज़ के हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एमएलए जो है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं वो एक ही पार्टी के हों। तो इसलिए लिखा है कि कैंडिडेट्स बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और मे बी इंडिपेंडेंट। नाउ स्टेट द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? इट इज़ अ प्लेस वेयर all the MLAs from ruling as well as the opposition party meet to debate and discuss various issues. अब legislative assembly क्या होती है? ये एक हो गई an assembly where all the elected representatives of the state they meet and then what do? They debate and discuss how to formulate the laws. इसमें क्या होता है? Opposition asks questions and ruling party responds to their queries. ऑपोजिशन पार्टी जो होगी वो उसमें से पूछेगी उनसे क्वेश्चंस, और जो रूलिंग पार्टी है वो उनके डाउट्स, उनके क्वेरीज को आंसर करेगी। ऑल दिस कहाँ पे होता है ये सब कुछ? लेजिस्लेटिव असेंबली में। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मेजॉरिटी, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन। अब इनका मतलब क्या होता है? वी आर यूजिंग दीज टर्म्स। इनका मतलब क्या होता है? अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. अब इसमें देखो, जब हमने एग्जाम्पल जो आपका दिया था, जो बुक में आपका एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस का, असेंबली इलेक्शंस का 2017 में, उसमें अगर हम देखें 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, ठीक है। 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में आप समझ लो जब काउंटिंग हुई, जब इलेक्शंस हुए, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर एक रिप्रेजेंटेटिव जीता। तो उसमें जब हमने काउंटिंग किया, जब रिज़ल्ट, तो क्या देखा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के 44 सीट्स थी, 44 MLAs वहाँ से इलेक्ट हुए, कांग्रेस के 21, और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उसके मतलब उसमें से भी उसके अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे उसमें थी तो 1, और इंडिपेंडेंट के 2 थे। टोटल हो गए 68। अब इसमें से हम देखेंगे कौन सी पार्टी को सबसे ज़्यादा मिले। तो इसमें किसको मिले थे? बीजेपी को, क्योंकि उसके पास 44 सीट्स थी। तो अब हम इस पार्टी को बोलेंगे मेजॉरिटी पार्टी, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ MLAs इलेक्ट हुए। और अगर जो दूसरा है जो उससे कम, जैसे इस केस में इस हमने एग्जांपल दिया, इसमें था INC, उसके थे 21, सो INC बिकम्स द ऑपोजिशन पार्टी। तो ये हो गया आपका मेजॉरिटी। रूलिंग पार्टी क्या होगी? जो पार्टी जीती है, जो मेजॉरिटी जिसका आया है वो गवर्नमेंट बनाएगी, तो उसको बोलेंगे हम रूलिंग पार्टी। और जो उससे जिसके कम थे उससे कम, जैसे इसमें इस एग्जाम्पल में INC, सो दैट बिकम्स द ऑपोजिशन पार्टी। Who becomes a chief minister? What is his or her role in a state? Up after the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader, who will become the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government department or ministers. Now अब क्या हुआ? Majority party बन गई, उसने गवर्नमेंट बनाई स्टेट में, वो रूलिंग पार्टी बन गई। बट ऑब्वियसली हमेशा हमें एक लीडर चाहिए। तो ये जो 44 मेंबर्स जो थे इकट्ठे MLAs, ये अपने एक कॉमन कंसेंट से ये अपना एक मिनिस्टर एक ढूंढेंगे, कि उसको बोलेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव को कि येस ही विल बी आवर चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर क्या होगा? चीफ मिनिस्टर अकेला तो काम करेगा नहीं, उनको भी हेल्प के लिए चाहिए। तो देन ही इलेक्ट्स अदर पीपल एज देयर मिनिस्टर, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो ये सारे चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, दे हैव द responsibility of running the different departments. Okay. Now coming to the next question, in the working of the government, explain the difference between being an MLA and an MLA who is also a minister. किसके बीच में डिफरेंस बताना है कि एक MLA कौन है और एक MLA जो मिनिस्टर बन गया, उसमें क्या फ़र्क है। द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स have the responsibility of running various government departments or ministries. चीफ मिनिस्टर और उसका अदर मिनिस्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है
अपने अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना. दे हैव सेपरेट ऑफिसेज. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी or from the opposition meet to discuss various things. Hence, the MLAs have dual responsibilities. One as an MLA and other as a minister. तो MLA का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगी. एक तो क्योंकि वो अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से जीता उसका भी केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है. एंड इफ़ ही इज़ इलेक्टेड एज अ मिनिस्टर बाय द चीफ मिनिस्टर, किसी भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर इलेक्ट कर दिया जाता है तो उस डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे ही आती है. सो दैट मीन्स उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी. वन एज एन एमएलए और अदर जहाँ का वो जिसका उनको मिनिस्टर बनाया गया है. Now, next question, why should decisions taken by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly? अभी हमने पढ़ा था कि legislative assembly में debate होती है, तो उसमें उन्होंने बोला why is it that the chief ministers और other ministers को debate करना चाहिए legislative assembly में. Now, the decisions taken by the chief minister and other ministers should be debated in the legislative assembly because of the following reasons. In the debate, MLAs can communicate their views and ask queries related to the issues. MLA बात कर सकते हैं, अपने views रख सकते हैं, अपने doubts को पूछ सकते हैं. It is also discussed whether it is urgent or not, how much would it cost the government, is there anything objectionable for any particular community, etc. They can give some suggestions as to what steps the government can take. तो डिबेट होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तभी हमारी तरफ से अगर है अगर अपोजिशन पार्टी कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछती है रूलिंग पार्टी से, सो रूलिंग पार्टी हैज़ टू टेल कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई करंट सिचुएशन है, कोई ड्राउट का प्रॉब्लम है, कोई भी एपिडेमिक कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए से वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो क्या चीज़ कर रही है, उनके लिए क्या एक्शंस ले रही है, सो कितना बजट लग रहा है, वेलफेयर के काम हो रहे नहीं हो रहे, सो ये सब चीज़ें वहाँ पर डिबेट होती हैं. चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स कैन रिप्लाई, वो रिप्लाई करते हैं एंड एश्योर पीपल कि ये जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं they are for the welfare of the citizens. Now, what is the difference between work that an MLAs do in the assembly and the work done by the government departments? This is very simple. This is just I have given you in case अगर question ऐसा आ जाता है, ये हमने पढ़ लिया है. An MLA works for the well-being of the people. He raises relative issues in the legislative assembly and he demands solutions to the problem. और government departments क्या है, वो implement करते हैं जो भी decisions legislative assembly में लिए गए हैं. Now, what do you mean by the word legislature? अब legislature एक नया वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? All the MLAs who gather together, जो भी MLAs इकट्ठे होते हैं in the legislative assembly, उन MLAs को हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं legislature. मतलब ये क्या हो गया? ये एक elected group of people हैं. They have the power to make and change laws in the कंट्री, ठीक है, इन द स्टेट और इन द कंट्री. इन द स्टेट में जो है जो भी उन्होंने लॉज बनाने हैं, चेंज करते हैं, उनको वो पावर है. ये सारे एमएलएस जो बैठते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर. They are the ones who authorize and supervise the work. Define the term press conference. A press conference क्या है? Press conference is a gathering of journalists from the media who are invited to hear about and ask questions on a particular issue and are then expected to report on this to the larger public. Press conference क्या है? जो journalist हैं मीडिया की तरफ से उनको बुलाया जाता है to hear about, और अपनी अगर किसी मिनिस्टर ने कोई अनाउंसमेंट करनी है, कुछ बताना है कि वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं या कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई करंट सिचुएशन स्टेट में ऐसा है, सो देन व्हाट आर दे प्लानिंग टू डू. सो ऑब्वियसली व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, क्या मोड होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं. एंड इट इज़ अदरवाइज का क्या फ़ायदा होता है कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद इसका जितना भी होता है वो पेपर में नेक्स्ट दिन या आप टीवी में उसको देखते हो. सो दैट मीन्स इट इज़ एन इवेंट विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑफिशियली टू डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया. मीडिया जो भी क्वेश्चन पूछेगी, आप देखते हो ना कई बार आप टीवी में हाँ जी सर आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, किसी मिनिस्टर से, मिनिस्टर हैज़ टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. सो ये हो गया प्रेस कॉन्फ्रेंस. नाउ हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग बेसिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर्स? द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ running various government departments or ministers.
हाउ डू यू थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ा, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड टेक एक्शन. प्रेस कॉन्फ्रेंस इज वन सच वे. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक वही तरीका है, क्योंकि इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स, मीडिया, दे गैदर एंड आस्क क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स. और उसके बाद क्या होता है, दे रिपोर्ट देम इन द वेरियस न्यूज़ पेपर्स एंड टीवी चैनल. इस तरह से क्या होता है, जो जनरल पब्लिक है, जैसे हम अगर बैठे हैं तो हमें पता लग रहा है कि आवर गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है. सो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी. Now, how do the people in power like the chief minister and the ministers take action? वो कैसे करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था. जस्ट आपको आंसर अगर लिखना हो तो जस्ट रीड दिस. दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट. अभी हमने कहा था चीफ मिनिस्टर अगर जब सेलेक्ट हो जाता है तो वो अपने एक टीम बनाता है, जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. फिर दे ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल को कन्विंस करना पड़ता है कि येस that proper steps are being taken. Moreover, newspaper and media widely discuss the issue and the government has to respond. अगर कोई भी न्यूज़पेपर या मीडिया में कोई भी क्वेश्चन या कोई इशू रेज करा जाता है तो गवर्नमेंट को उसको आंसर करना ही पड़ता है, तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कंडक्ट होती हैं. इस तरह से चीफ मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं एक्शन लेते हैं, काम करते हैं. वाई डू पीपल इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑर्गेनाइज मीटिंग्स? अब मीटिंग्स क्यों होती हैं? दे डू सो टू वॉइस, अपनी ओपिनियंस रखने के लिए. और कई बार लोग प्रोटेस्ट भी, आप देखते हो ना, कई बार कहीं पे धरनाज होते हैं, कहीं पे कुछ ऐसा करके उनका मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या होता है, ताकि वो अपना ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रख सकें. और अगर उनको कोई चीज़ लग रहा है कि गवर्नमेंट का एक्शन सही नहीं है, इट इज़ नॉट इन द फेवर, तो उसका प्रोटेस्ट करने के लिए भी. अब एक आते हैं गवर्नर. हाउ इज अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट अपॉइंटमेंट? द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द गवर्नर ऑफ वेरियस स्टेट्स. तो एक बार हम समझ लेते हैं, फिर वी विल रीड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस. गवर्नर क्या होता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया, ही हैज़ सिमिलर पावर एंड फंक्शंस एट द स्टेट लेवल एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल. तो मतलब गवर्नर कहाँ एग्जिस्ट करता है? स्टेट्स में. जैसे बट आपने देखा है वाइल गवर्नमेंट कहाँ होता है, गवर्नर होता है स्टेट्स में, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो यूनियन टेरिटरीज़ में होता है. जैसे कि हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में वी हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर. कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? अनिल बैजल. कुछ चीज़ें हैं बेटा जो कि आपको सबको पता होना चाहिए. अब गवर्नर क्या है? ही एक्ट्स एज द नॉमिनल हेड, बल्कि जो रियल पावर है इट लाइज विद द सीएम ऑफ द स्टेट्स and his or her council of ministers. But governor होते हैं क्या कि he acts as the nominal head of the state. ठीक है. अब गवर्नर का मतलब ही और शी का क्या है, ही और जो भी होगा, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करते हैं ताकि टू मेक श्योर, किस लिए? ताकि वो देखें कि जो स्टेट रन कर रही है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है. तो अगर एक हम सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना हो तो आप समझ सकते हो कि गवर्नर जो है एक तरह से एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. और क्या पर्पस है? टू कीप अ चेक ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. अब आप पढ़ो इसको. वाई इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटमेंट? गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटिंग टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अब इनके पावर्स क्या हैं गवर्नर ऑफ स्टेट के? द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर. अब देखो किसने अपॉइंट किया चीफ मिनिस्टर? गवर्नर ने अपॉइंट किया. एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर ने अपनी टीम ढूंढ ली, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए, बट इन सबको ओथ, कई बार आपने देखा होगा ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको ओथ दिलाते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट. All the appointments to high offices in the state are made by the governor. He can address, summon and dissolve the legislature. He has the power to summon and even dissolve the legislative assembly. Every bill which the state legislative assembly passes becomes a law only after the consent of the governor. तभी उन्होंने कहा ना ये एक लिंक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि इसीलिए ये पावर गवर्नर के पास है कि कोई भी बिल जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगी इट विल बिकम अ लॉ. वो लॉ तभी बनेगा जब गवर्नर उनको अप्रूवल दे देता है. What is the role of opposition party? That
डज नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट, हमने पढ़ा था अपोजिशन पार्टी क्या होती है, जो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाती है, उनको वोट्स जो हैं इलेक्शन में, सीट्स जो हैं रूलिंग पार्टी से कम मिली थी, बट अपोजिशन पार्टी का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है. हाउ अपोजिशन पार्टीज आर दोज विच इंक्लूड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इसमें भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो आ रहे हैं जो हमने इलेक्ट किए थे, बट उनकी पार्टी नहीं जीत पाई थी तो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई. बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एज दे कीप एन आई ऑन द एक्शंस ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट. वो ध्यान देते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट का है वो जो एक्शंस हैं वो वेलफेयर के लिए हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. दे टेक पार्ट इन एवरी डिस्कशन एंड डिबेट हेल्ड इन द असेंबली. वी स्टार्टेड दिस एंड दे कैन चेक एंड प्रोटेस्ट एनी रॉन्ग एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. सो दैट मीन्स ऑपोजिशन पार्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Now what is the process of formation of a government in a state? अब government कैसे बनती है? A general election is conducted to elect representatives from various constituencies. Elections होते हैं ताकि आप अलग अलग constituency हमने पढ़ा. The party which earns more than half of the total seats उनको majority बोलते हैं and that party is usually called for forming the government. Correct? Sometimes no party अब ये देखो कई बार कैसा होता है कि no party secures a clear majority. किसी को ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी को clear majority more than half of the seats win करा उन्होंने. अब इस केस में क्या होगा? In that case the party with maximum elected members जिनके पास सबसे ज़्यादा हैं, इट इज़ नॉट मेजॉरिटी बट कंपैरेटिव टू अदर इट इज़ मोर, तो वो क्या करेंगे? इट ट्राइज टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द अदर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट वो दूसरी छोटी जो पार्टीज़ हैं उनको अपने साथ मिक्स करना चाहेंगे, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि बिना किसी पार्टी के भी इलेक्शंस में खड़े हुए थे उनको अपने साथ में कंबाइन करना चाहेंगे. द पार्टी दैट प्रूव्स टू हैव द मैक्सिमम सपोर्टर्स इन दैट वे. अब इस तरह से जिस पार्टी ने अपने साथ और भी लोगों को कंबाइन कर लिया उसको बोलते हैं, फिर वो उनको बुलाया जाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए. और अगर फिर भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ इन दैट केस देयर वुड बी री इलेक्शंस. ओके, इस तरह से हमारी गवर्नमेंट स्टेट की बनती है. हाउ डज़ अ गवर्नमेंट फंक्शन इन अ स्टेट? गवर्नमेंट कैसे काम करती है? गवर्नमेंट इन अ स्टेट इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. पढ़ लिया आपने. द चीफ मिनिस्टर इन ऑर्डर टू मैनेज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. द अदर मिनिस्टर्स होल्ड चार्ज ऑफ डिफरेंट पोर्टफोलियो. अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनको दे दिए जाते हैं, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं. द मिनिस्टर्स क्या करते हैं? दे मेक डिसीजंस एंड गिव अप्रूवल. अपना अपना डिपार्टमेंट का काम देखते हैं, डिसीजंस बनाते करते हैं, और फिर उनका क्या फंक्शन है? दे गिव एडवाइस टू द गवर्नर, दे एग्जीक्यूट लॉज एंड डिसीजंस. जो भी बने हैं लेजिस्लेटिव में एग्जीक्यूशन का काम इनका होता है. एंड देन administration and maintenance of law and order also in the state. So this is how what is the functions of our government in our state. अब आया व्हाट डज द वर्ड कोएलिशन गवर्नमेंट मीन. अब हमने ये देखा था कि एट टाइम्स जो रूलिंग पार्टी में नॉट बी अ सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर. इस तरह की जब गवर्नमेंट बनती है उसको हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट. ठीक है. अब एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, मैप के साथ दिया हुआ है. व्हेन डिड तेलंगाना बिकम एन ऑफिशियल स्टेट? तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन कौन सा डेट? इसको याद कर लो, कई बार आ सकता है एग्जामिनेशन में. ऑन 2 जून 2014 आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का स्टेट बना. What do you mean by public meeting? It is a gathering of general people in which they are made known about the current problems about the masses. मतलब public meeting एक तरह से क्या हुआ है? They are held to engage wide audience और उनका इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती है और डिस्कशंस होती हैं. What do you mean by states in India? India is divided into several units with well defined boundaries और these units are known. कई बार एक बार हमें चीज़ तो बहुत पता होता है बट आंसर नहीं समझ में आता एग्जामिनेशन में क्या लिखो. दैट इज़ द रीज़न आई प्रोवाइड यू एवरी पॉसिबल क्वेश्चन दैट कैन कम फ्रॉम दिस चैप्टर. राइट. सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स विद वेल डिफाइंड बाउंड्री. हर एक की अपनी एक बाउंड्री है, वेल डिफाइंड बाउंड्री है, और इन यूनिट्स को हम लोग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाटलपुरम? अब ऐसे ऐसे कई बार क्वेश्चन है जो आपके एक स्टोरी लाइन से इस चैप्टर को वो समझाया गया एनसीईआरटी में. अगर उसके बेसिस में भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपने देखा है कि पाटलपुरम में इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर. पीपल आर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. एज अ रिजल्ट दे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ एक्यूट डायरिया. Children are the worst affected. This incident has provoked the anger of the people of Patalpuram. They have घिराउड the MLA's residence. जब आपका ये बुक में चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें दिखाया है कि 2 लड़कियां हैं, वो मैगजीन पढ़ रही हैं और उसमें उन्होंने देखा, न्यूज़पेपर में देखा कि यहाँ पे एक
पाटलिपुरम डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पे अनक्लीन वाटर आता है, वहाँ पे बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ एक्यूट डायरिया। लोगों को अनक्लीन वाटर वहाँ पे आ रहा है और 3-3 दिन पानी नहीं वहाँ पे मिल रहा, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पे। और इस इंसिडेंट की वजह से पाटलिपुरम के लोगों में गुस्सा आ गया और उन्होंने क्यों एमएलए का घर के आगे घेरा डाल दिया, इसलिए क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एमएलए टू लुक आफ्टर दी प्रॉब्लम्स जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को हो रही है। सो दिस इज एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाटलिपुरम। Why is the problem serious? The problem is serious because according to the TV news channels, several people have died from this disease, that is diarrhea, and hence it was necessary to take immediate action to bring situation under control. Now why were Afreen and Sujata excited? इन दो बच्चों का नाम भी इसमें आ रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो yes, Afreen, Sujata and other students were excited because they were traveling to the state capital to visit the legislative assembly. Legislative assembly वो देखने जा रहे थे, इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। असेंबली वॉज हाउस्ड कहाँ पे हो रही थी? इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, कहीं भी आप ऐसी जगह जाओगे आपका सिक्योरिटी चेक ज़रूर होता है। एंड चिल्ड्रन वर टेकन अप स्टेयर्स टू द विजिटर्स गैलरी, ऊपर बैठ के विजिटर्स गैलरी में बैठे थे और नीचे उनको क्या दिख रहा था? दे सॉ अ लार्ज हॉल विद रो ऑफ डेस्क्स फॉर द एमएलएज। सो ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ देखेंगे तो चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड। How did the chief minister and the health minister, what did the chief minister and the health minister do in the next week of the assembly session? जब ये लोग यहाँ गए थे तो उन्होंने क्या करा पाटलिपुरम का? In the week after the assembly session, the chief minister and the ministers for health visited. फिर वो वहाँ पे गए. They did the following in the day. They visited the families who had lost their relatives. They visited people in the hospitals. The government announced compensation for the families. उनको उन्होंने पैसों की तरह से पैसे दे के हेल्प करना चाहा, करा, उन्होंने ऑर्डर भी दिया. The chief minister said a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities. chief minister ने कहा कि यहाँ पर sanitation facilities का हम चेक करेंगे और we will make sure that the clean water is supplied. Chief Minister said that he would request the Minister of Public Works to take care of the needs of the proper water supply. तो ये सब उन्होंने एक्शन वहाँ जाके लिया। और एक के लास्ट इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अ वॉल पेपर प्रोजेक्ट। ये एनसीईआरटी का आपका एक लास्ट उसमें दिया हुआ है, सो क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। डिस्कस इट्स पेपर वॉल पेपर प्रोजेक्ट क्या होता है? ये क्या होता है? एक रिसर्च एक्टिविटी है बेसिकली। इट इज़ बेसिकली अ रिसर्च एक्टिविटी जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे करी जाती है। कैसे करते हैं? द क्लास इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। ये आपने करा होगा, आपको पता होगा, बहुत बार आपने स्कूल्स में अपनी चीज़ें करी होंगी कि द क्लास इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। चिल्ड्रन वर्क इन पेयर्स और इंडिविजुअली, कभी पेयर बना जाते हैं, कभी इंडिविजुअली भी आपको काम दिया जाता है। डिस्कशन ऑन द टॉपिक इज हेल्ड। चिल्ड्रन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर ऑब्जर्वेशन। बच्चे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उनके जो रिजल्ट्स थे वो लिखते हैं किसी भी तरह से। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ्स, पोएम्स, स्टोरीज, केस स्टडीज़, किसी भी तरह से। ईच ग्रुप फाइनलाइजेज द लेआउट फॉर द वॉलपेपर। हर जो ग्रुप है वो अपना एक लेआउट फाइनल करता है एंड प्रेजेंट्स इट टू दी अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट करता है ईच। और इसका एक क्या है? एक फिक्स टाइम भी होता है। ईच ग्रुप इज अलॉटेड सेम टाइम, सेम ही टाइम सबको मिलता है। आफ्टर प्रेजेंटेशन देर इज़ अ फीडबैक सेशन ऑन व्हाट मोर कुड हैव बीन डन। देन फीडबैक ऑलवेज हेल्प्स अस अ लॉट, क्योंकि आपको उससे पता लगता है व्हाट ऑल यू डिड गुड एंड अगर कभी कुछ नेक्स्ट हो देन हाउ व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू कैन मेक। सो दिस इज रिगार्डिंग अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट. So with this we come to an end of this session. If you found this video helpful, share it with your friends and make sure to hit the like button. Stay tuned to Chapter Hunt for as I'll upload MCQs, fill in the blanks from this chapter in my next video. Till then, take good care of yourself. Bye bye. I'll see you soon.